It is a bond form. It's a bond formed due to electrostatic force of attraction between shared electronic cloud and joining nuclei, which is dominant over the repulsive forces between the nuclei. Because nuclei are positively charged, which is dominant over the repulsive forces between the nuclei. क्या कहा मैंने? कोवेलेंट बॉन्ड is due to the electrostatic force of attraction between shared electronic cloud and joining nuclei. Mean if there are two atoms like hydrogen, simple अगर हम show करें, and we know that it has the valence shell 1s1. Two hydrogen atoms have two 1s1s approaching each other. And after approaching each other, these atomic orbitals, AOs, atomic orbitals, they overlap. Simple version दिखाऊंगा आपको, हम इससे कुछ आगे जाया करेंगे. They overlap, and then they keep this electronic cloud as shared. When they overlap, they are 1s, and as a result, the electronic cloud is now 1s2. दोनों satisfy हो जाते. It's moving here and here. Supposedly, very simple idea दे रहा हूँ मैं आपको basically. और जो इनके न्यूक्लियाई है, जो ऊपर भी बात मैंने की, these are the nuclei. So nuclei are no doubt positively charged. They should repel each other, but their repulsive forces are recessive against. Repulsive forces are lesser than the attractive forces between the nuclei and the electronic cloud. Okay, distance between the two nuclei, joining nuclei, distance between the two joining nuclei is called bond length. What we call bond length. और बॉन्ड लेंथ जितनी शॉर्टर होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना करेगा. ये बातें बार बार आएंगी. बॉन्ड लेंथ इज द डिस्टेंस between the nuclei. Or it is internuclear axes joining the two nuclei. Bond length is the distance between the nuclei, or it is the internuclear axis joining the two nuclei. Run straight through to the centers of both. The measure of the internuclear axis is called bond length. Shorter the bond length, of course किन के लिए shorter होगी? That is for smaller atoms. Shorter the bond length, smaller atoms के लिए, stronger the bond. जितनी बॉन्ड लेंथ कम होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. जैसे हम फ्लोरीन फ्लोरीन के बॉन्ड बनाएंगे, एंड यू विल फाइंड आउट फ्लोरीन जो है एटॉमिक नंबर जस्ट 9 है. इट मीन 1s2 2s2 2p5 है और n2 है. तो दे आर शॉर्टर एटम्स, स्मॉलर बॉन्ड लेंथ. लेकिन यही मैं आयोडीन के लिए बनाऊं तो आयोडीन गॉट 53 एटॉमिक नंबर, क्वाइट अ बिग इट इज. Distance between two iodine nuclei is longer. Electronic cloud is spread at a longer distance. So this will be stronger bond, fluorine fluorine, as compared to iodine iodine will be weaker bond. और हम bond energy साथ कोड करके बताएंगे. Energy needed to break the bond. Fluorine fluorine is 500 plus around, and iodine iodine is 290, in between 290 to 300.
So it means stability of the bond, strength of a bond is determined by how much their nuclei are separate. If they have longer distance, mean internuclear axis लंबी है, bond length longer है, वो weaker हो. एक तो ये point. ये बातें बार बार आएंगी. तो intro up. If more electronic cloud is shared, bond is stronger. अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड शेयर हो तो फिर भी बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो. लाइक नाइट्रोजन have a triple bond, and it is such a stable that 950,000 kilojoules is needed to break one nitrogen mole per mole. इसलिए नाइट्रोजन को ऑलमोस्ट इनर्ट कहते हैं. 78% एयर में है, बट इट इज नॉट दैट रिएक्टिव. ऑक्सीजन रिएक्ट्स, ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंबस्शन, ऑक्सीजन कॉजेज ऑक्सीडेशन. पंगे लेती है चीज से. फायर, जंगल फायर्स अनस्टॉपेबल है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंस. बट नाइट्राइड ऐसा नहीं होता कि हर चीज से ऑक्सीजन नाइट्रोजन रिएक्ट कर जाए और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बन जाए. दे आर सो डेडली. NO2 and N2O भाग नहीं सकता कोई अगर ये बनना शुरू हो जाए. वेरी रेयर, वेरी लेस, negligible percentage. Even from the engine it comes out like this, like 0.0001% NO2 N2O बन रहे हो, वरना ट्रैफिक में मर जाए. So it mean more electronic cloud shared, it mean nuclei are exerting a stronger force on more number of the electrons. So electrostatic force of attraction जो है अपोजिट बॉडीज के दरमियान ज्यादा होती जाएगी अगर चार्ज बॉडीज ज्यादा है. मोर द चार्जेस, हायर द स्ट्रेंथ. ओके. उसके अलावा देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड में, जो हम कोवेलेंट बॉन्ड की अगर डिटेल में जब जाना शुरू करेंगे तब आपको समझ आएगी कि सिग्मा बॉन्ड्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई. तभी हमने सिग्मा पाई पढ़े नहीं. फिर हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन नॉन हिब्रिडाइज्ड, वो भी हमने उस तरह से नहीं पढ़ा. ओके. एक चीज जैसे आपको, यस सर, आप ये जब नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन वाला पार्ट फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं ये कह रहा था फातिमा कि अगर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन देखें तो बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम देयर इज अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. इज इट? आपको आइडिया होगा कि नाइट्रोजन जो है इट हैज ट्रिपल बॉन्ड्स. हाँ, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके लास्ट शेल में, और जब 5 होते हैं लास्ट शेल में तो इट मीन जो है 3 शेयर करती है. तो कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ उस सूरत में भी ज्यादा हो जाती है व्हेन शेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड is more. One bond, another bond, another. So we need very high energy to break a triple bond as compared to a double bond. And double bond is comparatively stronger than single bonds. Okay? जब दो bonds तोड़ने होंगे तो ज्यादा एनर्जी लगेगी. तो this is also one point जब हम covalent bonds पे जा रहे हैं. अब एक चीज जो इवन O levels में जैसे आपसे पूछते हैं, यहाँ पे पूछेगा कुछ चीजों के लिए, और बड़ा ही हमारा डॉट एंड क्रॉस मॉडल्स जो है यहाँ पे, अगर वैसे उस तरह से क्वेश्चन भी आता है नो डाउट, लेकिन ना भी आए तो हम जब शेप्स और एंगल्स बनाने जाएंगे, सिमेट्री एंड ज्योमेट्री मॉलिक्यूल्स की बनाने जाएंगे, बड़े इंटरेस्टिंग और आसान टॉपिक्स हैं. याद रखें, मैं स्टार्ट से कह रहा हूँ केमिस्ट्री में कुछ मुश्किल नहीं है, और एएस में तो बिल्कुल ही कुछ मुश्किल नहीं. इट मे बी डिटेल्ड, बट इसमें कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको समझ ना आए. तो डॉट एंड क्रॉस मॉडल्स वो यहाँ पे भी बनवाता है, और हमें डॉट एंड क्रॉस मॉडल से ही जो है शेप्स डिसाइड करते हैं या एंगल्स डिसाइड करते हैं. तो जब भी वो शेप पूछेगा, एंगल पूछेगा, या हम वो पढ़ने जाएंगे वो टॉपिक थ्योरी, तो उससे पहले जो है हमें डॉट एंड क्रॉस मॉडल हर चीज का बड़ा क्लियर होना चाहिए, किसी का भी वो पूछता है. तो फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग विद अ सिंगल बॉन्ड लाइक H2, we know it is H. This is, and we show it with a single line HH. That is the reason it stays diatomic. फिर अपना 1s जो है इन लोगों ने ओवरलैप किया. And if it is oxygen O2, it means 2 oxygen atoms
are involved like this. बड़ा क्लियरली इस स्टेज पे, वैसे तो ये ओ लेवल्स में भी आती है ये बात पता होना चाहिए कि हाउ मेनी लॉन पेयर्स आर देयर एंड हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स आर देयर, बिकॉज बाद में शेप्स में ये रोल प्ले करते हैं. सो दीज आर शेयर्ड पेयर्स involved in bonding, and these are not involved in bonding. We call them as lone pairs. So there is a single bond, and then oxygen has basically a double bond. जब ये डबल बॉन्ड होगा, अभी आपने पढ़ा नहीं, हम पढ़ेंगे कि उनमें से एक सिग्मा हुआ करेगा और एक पाई होगा. हम उसको निकाल के दिखाएंगे, why it is sigma and why it is pi, in which orbital it is being sigma formed, and in between what pi is formed. Okay, and then like nitrogen, we know that nitrogen, अभी हमने देखा कि one nitrogen atom offer 3 has 2 because 5 है इसके last shell में. So there is a triple covalent bond. और जब ये ट्रिपल हुआ करेगा, अभी आपको नहीं सिग्मा पाई पता, मैं लिख रहा हूँ इसलिए कि ह्यूमन माइंड मेमोरी मैच करता है, अगले लेसन में आपको आएगी, बात ज़हन में आ जाएगी कि there will be 1 sigma and 2 pi. हम सिग्मा एंड पाई पढ़ेंगे कि क्या कैसे बनते हैं और क्यों कहते हैं हम सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू, बट देयर आर 3 bonds. We call it as triple covalent bonds. So dot and cross models like सारी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस आपको करनी है. अमोनिया, तो हमें पता है कि नाइट्रोजन हैज एटॉमिक नंबर 7, mean it plays in 2 5. Hydrogen has atomic number 1 only. So nitrogen has 5. 1, 2, 3, and it stays as lone pair. Hydrogen chips in. तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप सर्कल्स दिखाएं जैसे आप ओ लेवल्स में दिखाते हैं, यहाँ पे जरूरी नहीं है. मैं आपका दिल है, आप करें तो उसमें कोई वो नहीं है. It's like this. So ammonia has 3 single covalent bonds and 1 lone pair. This is lone pair and 3 bond pairs. मैंने कहा ना बाद में हमें शेप्स डिसाइड करने में यही चीज हेल्प करेगी. हम एक थ्योरी पढ़ेंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वेस्पर जिसको कहते हैं. तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन तभी समझ आएगी जब हमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पता चलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स पता चलेंगे. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स कितने, 1, 2 and 3. This one is the lone pair. Others are bond pairs. Okay. Then we have N2H4 हाइड्रोजीन. अक्सर जब मैं क्लास में करवाता हूँ तो नॉर्मली बच्चों से ये सारा काम करवाता हूँ मैं, डॉट एंड क्रॉस मॉडल्स, एंड आई मूव अराउंड टू सी कि कितनी ज्यादा बच्चों में समझ है इसकी. तो हाइड्रोजीन ज्यादा लोगों से नहीं बनती, सिंपल बनवाए. N2H4, nitrogen has 3 trivalent, and hydrogen is only monovalent, single valency of 3. So it means nitrogens are attached with each other by a single bond, and rest of the 2 valencies, because each nitrogen is trivalent, and then there is a lone pair each nitrogen atom carries. Which means अगर आप डॉट एंड क्रॉस में भी दिखाते तो इसका एक को क्रॉस से शो कर दें, दूसरे के डॉट से, जैसे दोनों सिमिलर हो तो आप दोनों को डॉट से दिखा सकते हैं. देन दिस इज डॉट एंड क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस. दिस इज हाइड्रोजीन. ओके, बच्चों को जब ये बनाने को देते हैं तो पता नहीं क्या बनाते हैं, ऐसे नाइट्रोजन में भी ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं और साथ हाइड्रोजन भी अटैच कर देते हैं. शुड बी क्लियरली नोइंग, बड़े क्लियरली पता होना चाहिए कि व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द वैलेंस शेल. और वैलेंस शेल की सिचुएशन अब आपको इन डेप्थ ज़हन में आ जानी चाहिए कि यार नाइट्रोजन इज 7, इट इज 1s2, 2s2 and 2px, 2py, 2pz, and each of the p as usual has 1 1 1 because electrons are filled to give the maximum number of unpaired electrons. So from here the valence shell start, because this is n1, n2 is the valence shell. So E2s2 stays as lone pair.
इट मीन ओवरलैपिंग जो होगी वो px py और pz जो है वो दूसरे नाइट्रोजन के साथ करते हैं, एंड देन दे गॉट स्टेबिलिटी. विल सी दैट हाउ दे डू दैट. तो देयर इज हाइड्रोजीन, अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. सिमिलरली हर तरह की आपको जो प्रैक्टिस है okay. So most of the children are there, fine. तो आपने अपनी प्रैक्टिस में वेरियस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक, बिकॉज हमें वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स आते हैं जिनकी हमने शेप्स और ज्योमेट्री और सिमेट्री प्रिडिक्ट करनी पड़ती है. लाइक मैंने कहा था ना जीनॉन कुछ कंपाउंड्स बनाता है, तो जीनॉन फ्लोराइड. तो अगर इसका शेप आए तो पहले हमें ये जानना होता है कि उसका डॉट एंड क्रॉस कैसे बनता है. अब इसके लिए मैंने कहा ना कि बॉन्डिंग इज फ्रॉम द वैलेंस शेल, डोंट लुक इनसाइड. किसी आइटम से बॉन्डिंग करने जाए हम उसका वैलेंस शेल देखेंगे, हम ये नहीं कहेंगे अंदर से इलेक्ट्रॉन दो ना, वो देगा. तो जीनॉन फ्लोराइड डॉट एंड क्रॉस शेप्स अक्सर हम बच्चों से पूछते हैं, नहीं बनती बिकॉज डॉट एंड क्रॉस से गलत बनाया. इट मीन जीनॉन जो है ग्रुप, जो जीरो ग्रुप है, हीलियम नियॉन ऑर्गन क्रिप्टॉन जीनॉन रेडॉन, 18 कह ले हम उसको. आप देयर इज बेसिकली हीलियम हैज द लास्ट शेल, फर्स्ट शेल इज द लास्ट शेल, और उसमें दो है इलेक्ट्रॉन, उसका एटॉमिक नंबर ही 2 है, बाकी सबके लास्ट में 8 होते हैं. तो इट मीन अगर ZF4 है तो फ्लोरीन है 7 इन द लास्ट शेल, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, 2 and 7. So when it has 7 in the last shell, it means one has to be shared to become a valence shell of 8, octet rule के लिए. तो इट मीन जीनॉन जो है अपने 8 में से, जीनॉन ग्लोबल गैस है उसके लास्ट में 8 है, हीलियम के अलावा सबके पास 8 होते हैं. इट मीन उसने 4 शेयर करना है. जो 4 शेयर करेगी तो देयर गोज फ्लोरीन्स. और हर एक फ्लोरीन जो है आपने उसको पूरी डेकोरेशन दिखानी है कि इट हैज 7 इन द लास्ट शेल, ताकि सबका ऑक्टेट रूल भी हो. लेकिन अब आप जीनॉन को देखेंगे तो जीनॉन का लास्ट शेल जो है इट हैज 2 4 6 8 एंड 10. 2 4 6 8 10 12. These 4 are the bond pairs, 8 and 2 are the lone pairs. तो मैंने कहा था ना कि बॉन्डिंग, दे डू बॉन्डिंग to complete their valence shell or try to do so, tends to do so. उस प्रोसेस में समटाइम्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं. तब आप जीनॉन का वैलेंस शेल देखें जो पहले कंप्लीट था, नोबल गैसेस करती ही नहीं है, बट सम रेयर कंपाउंड्स अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस आर थ्योरेटिकल कंपाउंड्स ऑन पेपर कुछ. तो आप जीनॉन को देखें तो जीनॉन हैज 12 इन द लास्ट शेल, वैलेंस शेल नाउ. तो इस तरह के केस को हम कहा करेंगे कि इसका ऑक्टेट ज्यादा हो गया, एक्सपेंड कर गया, एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड ऑक्टेट. इसका ऑक्टेट जो है वो एक्सपेंडेड. तो शेप्स में ये बात दोबारा आएगी, आगे हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, एंगल्स बनाएंगे, बट जस्ट फॉर डॉट एंड क्रॉस पर्पस. लाइक C2H2, C2H4, C2H6. क्लास खत्म भी होगी तो कल आपने प्रैक्टिस करके रखने हैं ये सारे जो हम चंद एक एग्जांपल ले रहे हैं. लाइक HCl और लाइक tin फ्लोराइड. tin क्लोराइड भी होता है, लाइक CO2. सबके डॉट एंड क्रॉस. तो अगर हम C2H2 का बनाए तो इट मीन कार्बन हैज एटॉमिक नंबर 6, फर्स्ट शेल 2, 1s2, but 2s, 2px, 2py, 2pz.
तो हम देखेंगे जब थोड़ी सी बॉन्डिंग या चैप्टर में आगे जाएंगे, मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन सिखाऊंगा, कुछ चीजें सीखेंगे हम, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल सीखेंगे। लेकिन इतनी बात आपको पता होना चाहिए कि कार्बन इज 1s2 2s2 2px1 2py1 नॉर्मली। लेकिन जब ये बॉन्डिंग करने लगता है तो अपने 2s के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट करके ये 2pz में भेज देता है। तो हम उसको कहते हैं कि दैट इज एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन इज इन बेसिकली इन एक्साइटेड स्टेट। अब इसका वैलेंस शेल चेक करें तो उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज व्हाई कार्बन इज टेट्रावेलेंट। ये बात में समझ आए तो लेवल्स वाली बात आपको पता है कि फर्स्ट शेल इज 2 एंड सेकंड इज 4 एंड दैट इज द रीजन इट मेक 4 बॉन्ड्स। तो कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाए। तो C2H4 अगर हम बनाने जा रहे हैं, इथाइन जिसको कहते हैं, एसिटाइलिन गैस जो वेल्डिंग में यूज होती है, तो इट शुड बी कार्बन C2H4 नहीं, मैंने कहा था मैं पहले आपको C2H2 सिखाऊंगा। C2H2 बिकॉज ये तो इथाइन इथीन थी। C2H2 that is ethine acetylene gas. C2H2 mean both carbon have one hydrogen attached. तो इट मीन उन्होंने आपस में जो है दोनों भाइयों ने ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाया एंड वन इलेक्ट्रॉन इज ऑफर्ड बाय ईच कार्बन टू द हाइड्रोजन। आप देखिए होंगे 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड बना। हम इसकी शेप और एंगल निकालने होंगे तो कार्बन का, और फिर हमें हर शेप और एंगल में सेंट्रल एटम भी निकालना पड़ेगा कि कौन सा सेंट्रल एटम है। तो कार्बन जिसकी वैलेंसी ज्यादा होती है वो सेंट्रल एटम। तो कार्बन हैज 4 वैलेंसी, इट इज इन द सेंटर। 2 सेंट्रल एटम है यहाँ पे दोनों कार्बन। और अगर इसको मैं लाइन डायग्राम में पुट करूँ तो ऐसे करूंगा HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, जिसको शॉर्ट लिखा होता है C2H2, दैट इज इथाइन। अगर मैंने इथेन बनाना होता तो carbons are sharing 2 electrons with each and rest of the 2 electrons of the valence shell 2s1 2px1 2py1 2pz1 are offered to hydrogen which chips in through 1s। अगर मैं इथाइन का लाइन डायग्राम बनाऊं तो double bond and then these two are what, हम लोग ये ओ लेवल्स वाली बातें काफी हद तक आज की आती होंगी आपको। तो इट इज बेसिकली CH2 डबल बॉन्ड CH2। बट ओ लेवल्स में हम डेप्थ में नहीं जाते हैं या आप उस तरह से सोचते नहीं, पेपर करने की पड़ी होती है। ए लेवल्स बेसिकली यू हैव टू डू, इट इज अ रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम बेसिकली। सो जितना आप इन डेप्थ में जाएंगे, रिसर्च करेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे, अपनी बुक को पढ़ेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे क्यूज एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस करेंगे, तो कुछ बनता जाएगा काम। यू कांट बी शॉर्टी हेयर स्किपी समहाउ, कहें कि जल्दी से कुछ हो जाएगा, तो बिल्कुल जल्दी से कुछ नहीं होगा। Gradually you will find out you are enriched and you are attempting things. Okay, तो डॉट एंड क्रॉस मॉडल्स में आपने अपने तौर पे जो है, जैसे टिन फ्लोराइड का, CO2 का, C2H6 का, कुछ टफ से मॉलिक्यूल्स लेके, मैंने कौन सा लिखा, टिन क्लोराइड लिखा। टिन क्लोराइड फ्लोराइड एक ही चीज है। या आपने सिंपल वाला CO2 बनाना है, HCN बनाना है। So these you need to try. Okay, कल मुझे याद कराना, कल यहीं से हम आगे चलेंगे और ग्रेजुअली कोवलेंट बॉन्डिंग में हम कुछ डिटेल में जाते जाएंगे। एनी क्वेश्चंस?
लोगों ने कुछ प्रैक्टिस करनी है अपने तौर पे। ओके, कल इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।